Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening, whatever is the time that you're watching the video, accordingly the greetings. Okay, so today I'm going to start this channel by answering a few questions, and this channel is all about just talking what's in your mind, in my mind, in our general, the things that we face in our lives. So, this video is particularly for people who want to achieve a goal, but they are not able to achieve it for whatever reasons. Everybody might have different reasons, and the goals may be different. Somebody might want to lose weight, somebody might want to clear an examination, somebody might want to get a promotion. Anything means anything in this world, okay? But for whatever reasons, maybe because you are procrastinating, or maybe there are you're not getting the hope and the will to do it, and maybe you're consistently failing, so that is why. So for whatever reasons you're not able to achieve whatever your goal is. All right, so we'll answer some questions regarding it. Let's begin. So the first question is, can I start today? ठीक है, अब कैन आई स्टार्ट टुडे में बहुत सारे सब क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं. ठीक है, can I start? Will it be worth it? What if I fail? Oh, what if this happens? What if that happens? Oh, I've always been failing, and it will be a futile effort again. So what's the point? ठीक है, तो बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं. For a moment, clear all those questions from your head and just stick to one question. Can I start today? अब इस क्वेश्चन का जवाब आपको कैसे मिलेगा? लेट्स से सपोज यू हैव टू लूज़ वेट. ठीक है, तो आपको पहले तो आंसर दैट यू हैव द नेसेसरी इक्विपमेंट्स अराउंड यू टू बी एबल टू डू दैट टास्क. सपोज आपको एक्सरसाइज करनी है. डू यू हैव अ योगा मैट? डू यू लेट्स से हैव सम इक्विपमेंट्स? डू यू हैव अ नियर बाय जिम? डू यू हैव अ सब्सक्रिप्शन टू दैट जिम? डू यू हैव लेट्स से एन ओपन स्पेस और अ पार्क वे यू कैन गो फॉर अ वॉक और फॉर अ रन? डू यू हैव योर शूज़? डू यू हैव द नेसेसरी क्लोथिंग? ठीक है, अगर आपके पास बेसिक चीज़ें हैं वो टास्क करने की, कुछ भी टास्क हो, अगर आपको लेट्स से स्टडी करना है, डू यू हैव योर पेन पेंसिल स्टेशनरी? डू यू हैव योर रेलिवेंट बुक्स? यू हैव योर रेलिवेंट मटीरियल अराउंड यू? यू हैव अ रूम और अ स्पेस वे यू कैन सिट एंड स्टडी? बस इतना चाहिए. ठीक है, सो इफ़ यू हैव द रेलिवेंट things that you need to do that task, so the answer to can I start today is a yes. All right, और कुछ नहीं चाहिए to start today. Just if you have the necessary things with you, yes, you can start today and you must start today. ठीक है, is it too late? It's never too late. Until and unless you are alive, you are breathing, you are physically fit and mentally fit to be able to do that task. See, mentally fit, I'll take. Many people will say, we're in a mentally bad space or whatever. If you are physically fit and mentally not too bad, let's say you're not clinically depressed, or you have some clinical issues mentally, until and unless that is the situation, it's never too late. Until and unless you're breathing, you're alive, you're physically fit, it is not too late. Okay, so forget this question. Will it be worth it? Well, today let's not decide will it be worth it or not. Will it be worth it is a question of the future. And will it be worth it, वो आपको पता तो तभी चलेगा जब आप वो टास्क करोगे. जब आप वो टास्क करोगे ही नहीं, if you leave it to inaction, then you will always be that यार काश मैंने वो कर लिया होता. वो जो काश वर्ड है ना, that काश वर्ड is a very bad thing to live with. ठीक है, सो विल इट बी वर्थ इट? अगर वर्थ इट नहीं भी है तो करके पता लगाओ कि इट वॉज नॉट वर्थ इट. ठीक है, सो फॉर दैट वट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू डू इट. यू हैव, अगर आपने अपना 100% जब तक नहीं दिया है तब तक तो यू शुड नॉट लीव इट. इफ़ यू हैव गिवन योर 100% एंड अपनी पूरी जान लगा दिया, उसके बाद छोड़ दो. ठीक है, बट अनटिल देन डोंट. ठीक है, सो लेट्स से इफ़ यू आर वॉन्टिंग टू लूज वेट, ठीक है, आप नहीं कर पाते किसी भी मतलब यू स्टार्ट एंड देन यू गेट लेजी, यू डोंट फिनिश इट, दैट्स नॉट गिविंग योर 100%. जब तक आपने अपना 100% नहीं दे दिया टू दैट टास्क, ठीक है, तब तक डोंट लीव इट एंड डू इट एंड देन फाइंड आउट इज़ इट वर्थ इट और नॉट. ठीक है, सो द क्वेश्चन ऑफ इज़ इट वर्थ इट टुडे इज़ इररेलेवेंट. ठीक है, उसको उठाओ, उसको करो
और अपनी पूरी शिद्दत से, अपनी पूरी मेहनत से, अपनी पूरी जी जान लगा कर अपना 100% दे के उसको करो, एंड देन फाइंड आउट was it worth it or not. If it was worth it, good enough. If it was not worth it, well, it's an experience that you can pass on to others. Now, the next question is, have I not already wasted enough time, or maybe lost enough time, or past में मैंने बहुत बार किया है, but I have never been able to accomplish it. So past is past. So this question is about the future and this question is about the past. ठीक है, आज हम पास्ट को और फ्यूचर को दोनों को नहीं देख रहे, हम आज इस मोमेंट में जी रहे हैं. ठीक है, सो वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस वेरी मोमेंट. अभी से 5 मिनट बाद भी हम नहीं सोच रहे हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. हम सिर्फ अभी सोच रहे हैं कि क्या हम कभी कर पाएंगे, क्या हमारे पास नेसेसरी सामान है वो करने के लिए जो हम करना चाहते हैं, वर्थ इट होगा या नहीं, या पास्ट में क्या हो गया उसको भूल जाओ. ठीक है, सो दीज 2 थिंग्स यू हैव टू फॉरगेट फॉर नाउ, बिकॉज विल इट बी वर्थ इट आपको फ्यूचर में जाके पता चलेगा. और हैव आई नॉट ऑलरेडी वेस्टेड इनफ टाइम, दैट्स ऑफ द पास्ट, सो लीव इट. ठीक है, फ्रॉम द पास्ट यू हैव टू ओनली लर्न. ठीक है, आपने जो गलतियाँ करी हैं सिर्फ उनसे सीखना है, उसको कभी भी रिग्रेट नहीं करना है. नेवर रिग्रेट. ठीक है, नेवर रिग्रेट वट एवर you've done in the past. Take it as an experience, learn from it. We are all humans, we are meant to make mistakes, we are meant to make mistakes time and again. So never be in that regret, never live in that regret. At least I never want to, because it's useless, it's literally useless. Except spoiling your present, it doesn't do anything. सो पास्ट में हम जाके देखेंगे सिर्फ अपनी गलतियाँ सुधारने के लिए और कुछ नहीं. ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर मिल गए. नाउ वी हैव डिसाइडेड दैट येस वी विल स्टार्ट टुडे. ठीक है, अब कैसे स्टार्ट करना है. ठीक है, कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले तो एक ब्रॉड प्लान बना लो. ठीक है, I would not say just jump on to doing it, you have to study or you have to lose weight, just jump on to doing it. No, don't do that, because then you will be going in an unplanned and haphazard manner. Don't do that. Sit down, ना पास्ट का सोचो ना फ्यूचर का सोचो, सिर्फ जिस टाइम बैठे हो उस टाइम सोचो अब क्या, what now, how can I go about it now. ठीक है, अब मेरे पास राइट नाउ एट हैंड आई हैव दिस टास्क. सपोज आपके बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं. ठीक है, अब आपने सोच लिया यार, आप तो रिग्रेट करने बैठे हो कि मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, ये नहीं किया वो नहीं किया. फॉरगेट अबाउट इट, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. अभी का सोचो, मेरे पास ये टास्क है, व्हाट नाउ. आई हैव दिस गोल टू लूज वेट, व्हाट नाउ. आई हैव दिस पोजिशन और दिस करियर टू अचीव, व्हाट नाउ. ठीक है, सो व्हाट कैन आई डू नाउ से आपको हाउ का जवाब मिलेगा. उसके बेसिस में मेक अ प्लान. जितने भी दिन है, जितना भी टाइम है, उसके हिसाब से प्लान बना लो. ठीक है, नाउ व्हाट डू आई हैव टू डू. अगेन मेक अ प्लान. फर्स्टली मेक अ प्लान, ब्रॉड प्लान. ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम विच इज़ द मेजर प्रॉब्लम विद मेजॉरिटी ऑफ अस, including me, and that is why I'm making this video, in a way to clear my own head as well. ठीक है, that's why I've written now. So how do I stay consistent? इसके लिए let's do one thing. We can connect on this channel every day. We can post in the comments whatever our tasks are and have we achieved our daily goals or not. Otherwise, on your personal level, make a journal. One thing is there that nobody can make you do anything. कोई आपके सर पे डंडा रख के कोई काम आपसे नहीं करवा सकता. और वो काम अगर आपने कर भी लिया ना, यू वोंट बी एबल टू डू इट विद योर ओन विल. और जब तक आप अपनी विलिंगनेस से कोई काम नहीं करोगे ना, योर 100% विल नॉट बी गिवन टू दैट टास्क. सो जर्नलिंग इज़ अ वे टू स्टे अकाउंटेबल टू योर सेल्फ. ठीक है, सो जर्नल करो, लिखो, अपने फेलियर्स भी लिखो और रोज़ करो. ठीक है, क्या होता है ना कि हम एक लूप में फंस जाते हैं. जैसे लेट्स से सपोज़ हमने आज डिसाइड किया कि हम कोई टास्क करेंगे. ठीक है, अब हमने आज डिसाइड किया, हम बड़े जोश में हैं, हमने करा, लेट्स से 5 दिन करा, 6 दिन करा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते करा.
उसके बाद वी लूज़ द कंसिस्टेंसी। अब ये कंसिस्टेंसी कैसे लूज़ होती है? ये कंसिस्टेंसी एक दिन में लूज़ नहीं होती, एक दिन को लूज़ करने को कंसिस्टेंसी नहीं बोलते, कंसिस्टेंसी लूज़ करना नहीं बोलते, ठीक है। व्हेन ओवर अ पीरियड, उसके बाद सपोज जैसे आपने 2 हफ्ते वो काम करा, उसके बाद 3 हफ्ते तक करा ही नहीं वो काम, ठीक है। अब वो जब 3 हफ्ते हो जाते हैं ना, तब कंसिस्टेंसी जाके ब्रेक होती है। दैट्स कॉल्ड व्हेन कंसिस्टेंसी इज ब्रोकन। टेकिंग अ ब्रेक फॉर 1 डे, फॉर 2 days, दैट्स नॉट ब्रेक ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो उसके लिए ना, अगर आप रोज़ जर्नल करोगे, लाइक सपोज टुडे हमने एक टास्क, मैंने सपोज कोई टास्क सोचा था, कोई टारगेट सोचा था, नहीं हुआ, ठीक है। अब आई हैव टू राइट डाउन कि मैंने ये टास्क नहीं किया है। इफ़ आई एम राइटिंग डाउन, मेरे दिमाग को स्पेसिफिकली पता है कि मैंने ये टास्क आज का नहीं किया है, एंड आई हैव टू डू इट टमोरो। इवन इफ टमोरो आई एम नॉट एबल टू डू इट, राइट इट डाउन। जब आप लिखोगे तो आप अपने दिमाग को स्पेसिफिकली एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि भाई तूने ये काम नहीं किया है, यू हैव टू डू इट। कंसिस्टेंसी इज़ ब्रोकन जब हम उस काम को नहीं करके भूल जाते हैं, ठीक है। हम उसको छोड़ देते हैं, हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं, हम उस चीज़ से दूर भागते रहते हैं, ठीक है। तो दूर नहीं भागना है उस चीज़ से, उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल खुद को ठहराना है। एंड just stop blaming the environment around you, stop blaming the people around you. Nobody is responsible for your life except you yourself. For anything in this world, take responsibility and hold yourself accountable. Only then can you grow, ठीक है। So these are literally, you know, एक मूल मंत्र है कि अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो और अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपनी लाइफ की और अपने एक्शंस की, ठीक है। सो उसके लिए जर्नल करो एंड स्टे कनेक्टेड। किसी भी तरह से फाइंड अ वे टू मेक योर सेल्फ अकाउंटेबल। यू नो, इफ़ यू हैव अ क्लोज फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड, जिसको आप फ्रेंड या एनी बडी जिसको आप ट्रस्ट करते हो, मे बी योर पेरेंट्स या सिबलिंग्स, किसी को भी, उसको रोज़ बताओ, उसके साथ अपना प्लान शेयर कर लो, ठीक है, कि ये टास्क था मैंने नहीं किया है आज, एंड यू नो, so that somebody is there to hold you accountable. This journal is also a method to keep you accountable to yourself in case you don't want to share with anybody. You can connect here with me so that you know एक ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस होती रहे, ठीक है। नाउ इफ़ आई फेल अगेन, और देखो कंसिस्टेंसी एक दिन में ब्रेक नहीं होती है, दैट आई हैव टोल्ड यू। अगर आप उस चीज़ को 2 दिन में भी उठा रहे हो ना, उसको बस लैग मत होने दो। लैग कब होता है? जब हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। भूलो मत उसको अपने आप को याद दिलाते रहो कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। इफ़ आई फेल अगेन, हो जाओ, कोई बात नहीं, फेलियर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। यू फेल अगेन, यू गेट अप अगेन, ठीक है। फेल हो गए, मैंने 1000 बार प्लान्स बनाए हैं, ठीक है। आई हैव फेल्ड टाइम एंड अगेन, ऑलमोस्ट एवरी डे आई हैव फेल्ड, एवरी डे आई हैव मेड अनदर प्लान, ठीक है। सो फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ इट। कभी भी स्ट्रेट लाइन में सक्सेस नहीं होता है, सक्सेस विल बी एन अप एंड डाउन कर्व, ठीक है। बट अल्टीमेटली ये कर्व अपवर्ड होना चाहिए। डाउन होगा गेट अप, डाउन होगा गेट अप, डाउन होगा गेट अप। जितनी बार भी फेल होगी गेट अप, एंड ओनली देन विल दिस ग्राफ गो अप, ठीक है। स्ट्रेट लाइन तो होती ही नहीं है, स्ट्रेट लाइन लाइफ की ही नहीं है, तो फिर इसमें कैसे होगी, ठीक है। सो टू अचीव एनीथिंग, फेलियर से डरो मत, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम नॉट एबल टू फोकस, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं होगा स्टार्टिंग में, आदत डालने की बात होती है। आपको पता है ना कि आपको सुबह उठ के ब्रश करना है, इट डजंट रिक्वायर फोकस, एक रिफ्लेक्स एक्शन है आपका कि आप उठते हो, बेड बनाते हो, यू नो, यू गो एंड ब्रश, ठीक है। सो एक दिन में नहीं आएगा, गिव इट टाइम, बट उसको करो, रोज़ कंसिस्टेंटली करो, रोज़ जर्नलिंग करो, रोज़ किसी के साथ शेयर करो, और अगर नहीं हो रहा है 5-5 मिनट लेके बैठो, ठीक है, सिट विद इट। अगर एक्सरसाइज करने का मन नहीं हो रहा है, जाओ, जस्ट शो अप, ठीक है। शोइंग अप, 80% सक्सेस आपको पता है इज़ जस्ट शोइंग अप। यू जस्ट हैव टू शो अप। आपको एक वेट लूज़ करना है, आपका नहीं मन हो रहा कुछ नहीं करने का, बिल्कुल अंदर से ना, आत्मा से वो ही नहीं आ रही है, मतलब बिल्कुल एवरीथिंग इज़ जस्ट पुलिंग यू बैक कि भाई सो जा, ठीक है, बिल्कुल मन नहीं हो रहा जाने का, शो अप, जस्ट गो टू द जिम, ठीक है। ट्रेडमिल पे वॉक करना शुरू कर दो, मत भागो, मत करो कुछ एक्सरसाइज, जस्ट स्टार्ट वॉकिंग,
जब वो पसीना आना धीरे धीरे शुरू होगा ना, अपने आप बन जाएगा. इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्टडी, मत करो. बस डिस्ट्रैक्शंस हटा दो, फ़ोन वोन सब सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दो, एक रूम में बंद करके बैठ जाओ, बुक्स के साथ बैठ जाओ, मत पढ़ो. मत पढ़ो, आधे घंटे तक बैठे रहो, 1 घंटे तक बैठे रहो. बैठो, कुछ करने को नहीं होगा तो 4 लाइनें पढ़ ही लोगे ना. जब वो 4 लाइनें पढ़ोगे तो उसमें एक लूप बनेगा, 4 और पढ़ लोगे. बस ये है कि डिस्ट्रैक्शंस हटा दो अपने आसपास से, ठीक है. सो जस्ट इफ़ यू आर नॉट एबल टू फोकस, जस्ट टेक एक्शन, ठीक है. उस चीज़ को, जो भी गोल है ना, उसको लेके बैठो, उससे दूर मत भागो. अगेन वही कंसिस्टेंसी का पॉइंट है, दूर मत भागो चीज़ों से. जब तक भागते रहोगे नहीं कर पाओगे. उसको लेके बैठो, उसको फेस करो कि हाँ भाई पढ़ना है, किताबें हैं रखी हैं, अब बताओ. पढ़ ही लूँगा ना 4 लाइनें एटलीस्ट. सो और रोज़ लेके बैठो. रोज़ लेके बैठोगे तो एक जैसे ब्रश करने वाला रिफ्लेक्स है ना, ये भी बन जाएगा धीरे धीरे, ठीक है. एंड वील बी टॉकिंग कंटिन्यूसली, वील बी टॉकिंग एंड लेट्स से आई विल बी ऑल्सो शेयरिंग द प्रोग्रेस, जो भी माई गोल इज़, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज, विल आई बी एबल टू अचीव माई गोल. अगेन, विल इट बी वर्थ इट, विल आई बी एबल टू अचीव माई गोल. ये जो विल है ना, दिस इज़ अबाउट द फ्यूचर. और फ्यूचर का पता लगाना है तो फ्यूचर में जाके पता लगाओ. विल आई बी एबल टू अचीव माई गोल, उस गोल के लिए पहले मेहनत तो करो. अगर इफ़ यू डोंट वर्क फॉर योर गोल तो फिर आंसर नो ही है ना. इफ़ यू आर नॉट वर्किंग फॉर इट, आप उस चीज़ को उठाओगे नहीं, आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, आप उस चीज़ से भागते रहोगे, फिर तो आंसर नो ही है. उस आंसर की येस की जो पॉसिबिलिटी है, उस येस की पॉसिबिलिटी के लिए आपको इस वाले येस पे पहुंचना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा, उस टास्क को करना पड़ेगा, ठीक है. तो उस येस की पॉसिबिलिटी तभी तो बनेगी, नहीं तो वो पॉसिबिलिटी ज़ीरो है ना. चलो हमने सब कर लिया, पूरी मेहनत कर ली, कंसिस्टेंसी से सब कर लिया, प्लान बना लिया, फोकस्ड भी रह लिया, सब कर लिया. बट व्हाट इफ़ आई डोंट अचीव? इफ़ यू डोंट अचीव, व्हाट इज़ देयर टू लूज़? There's always to gain, that you will never have the regret in your life that you did not even try. And this is a huge thing, that I gave my best. Rest is destiny. अभी से क्यों डेस्टिनी पे छोड़ रहे हो? जब तक आपने अपना 100% नहीं दिया, डोंट लीव टू डेस्टिनी. एक बार आपने अपना 100% दे दिया, नाउ यू हैव नथिंग टू रिग्रेट. फिर मिले या ना मिले, लेट इट बी, ठीक है. सो you will never have that regret in your life at least. और बाकी 90% अगर आप अपना 100% दोगे, you will be able to achieve that goal. This I'm telling you, although future की बात है, but I'm telling you, if you do your 100%, you will be able to achieve that goal, ठीक है. So on that note, on a positive note, बैठ जाओ, एक प्लान बना लो, ठीक है, एंड स्टार्ट वर्किंग एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन, ठीक है. जब तक बैठ के सोचते रहोगे कुछ नहीं होगा. गेट अप फ्रॉम दैट बेड, गेट अप फ्रॉम दैट लेजीनेस, गेट अप फ्रॉम दैट माइंड सेट कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो रहा है. जस्ट गेट अप एंड स्टार्ट टू डू इट, ठीक है. ऑलराइट, ऑन दैट पॉजिटिव नोट, आई विल सी यू in the next video. Till then, bye bye, take care, all the best.